নমস্কাৰ খুলুমবাই আজি মই ইউএন একাডেমি চিলিকাগুৰিয়ে আয়োজন কৰা কেৰিয়াৰ গাইডেন্সৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছে। এই কেৰিয়াৰ গাইডেন্সৰ আমন্ত্ৰিত অতিথি আছিল মিছ ৰিংকুমণি বড়ো, যিজন ৰিংকুমণি বড়োৱে জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিছে। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি যে কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং অনুষ্ঠানটি এই অনুষ্ঠানটিত আমন্ত্ৰিত হ'বলৈ পাই মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু মোৰ কাৰণে এইটো এটা বহুত সৌভাগ্য যে এখন ইমান ধুনীয়া স্কুল এখন শিক্ষানুষ্ঠানত আহি মই কিছুমান কথা তোমালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাম। গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে যদিও বুজি নোপোৱা অসমীয়া মাজে মাজে মই বড়োটো ক'ম, গতিকে ঠিক আছে। So first, maba moनसे नोंसोरो लार्निं खालामनायनि सिगाङाव फियरखौ बाद दोननांगोन दे, होमबासो गोदान नोंसोरो लार्निं खालामनो हागोन। दिनैनि टपिकआ जादों IAS, Indian Administrative Service। केতিয়াবা ৰাস্তা তোমালোকে যেতিয়া খোজকাঢ়ি যোৱা সেইটো টাইমতে দেখিবা যে এটা গাড়ী গৈ আছে আগফালে, য'ত পুলিচ গৈ আছে, পুলিচৰ গাড়ী, তাৰ মাজত এটা গাড়ী গৈছে VIP গাড়ী, আকৌ তাৰ পিছফালে দুটা পুলিচৰ গাড়ী, ঠিক আছে, আৰু বহুত স্পীডত যায়। আৰু সেইটো অহাৰ লগে লগে ট্ৰেফিক যদি জাম হৈ থাকে সেই ট্ৰেফিকৰ পৰা আঁতৰাই দিব লাগে, খালী কৰিবলগীয়া হয়, ঠিক আছে। ফাৰ্ষ্টতে যাব তোমালোকেতো ভাবিবা যে বা বহুত স্পীড গৈছে দেই গাড়ীটো, তাৰপিছতে সেই গাড়ীটোৰ আগফালে লিখা থাকিব এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ নহ'লে DC, ডেপুটি কমিশনাৰ, ADC লিখা থাকিব, এডিশনেল ডেপুটি কমিশনাৰ, ৰেড কালাৰ প্লেটত লিখা থাকে নামটো, ঠিক আছে, তেনেকৈ ডেপুটেশ্যনটো লিখা থাকে, ঠিক আছে। আৰু সেইজনৰ কামটো কি হয়, সেইজন অহাৰ লগে লগে কি হয়, মই নিজৰ ষ্টৰিটো মই কৈছোঁ, মোৰ যোনটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ। যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, মই য'ত ডাঙৰ হৈছিলোঁ সেইটো হৈছে চাৰ্কিট হাউচ কলনী জোনাই, এটা কলনীত হৈছিলোঁ, ডাঙৰ হৈছিলোঁ। মোৰ দেউতা 4th গেটত চাকৰি কৰে। দেউতাই অফিচৰ আগফালে যে ফুলনি বাগিচা থাকে নহয়, সেইবিলাকত হাল কোৰ বাই তাত ফুল চুল ৰোৱা আছিলে, ফুলত পানী দিয়া আছিলে, তেনেকুৱা কৰা মালি আছিলে। এতিয়া যেনিবা কৰ্টত কৰে, কৰ্টত এতিয়া পিয়ন কৰে। সৰু থাকোঁতে যেতিয়া আমি হেৰিত আছিলোঁ, আপোনাৰ কলনীত যেতিয়া আছিলোঁ, বেলেগ বেলেগ মানুহৰ মাজত ডাঙৰ হৈছোঁ। আৰু তেতিয়া দেখোঁ যে এটা সময়ত দেউতাহঁতে নিজৰ ঘৰত যদি থাকে, নিজৰ কাম বন এৰি অফিচত দৌৰি যোৱা দেখিছিলোঁ। অফিচত দৌৰি যায়, ছাৰ আহিছে কৈ দৌৰি যায়, আৰু লগতে বাকী যিমান মানুহ আছে চবেই দৌৰি যায়, ইমান ৰেচপেক্ট কৰে। আমি ভাবোঁ কোন আহিছে বুলি, দেউতাহঁতে নিজৰ চাকৰিটো যাব বুলি ভয় কৰে সেই মানুহটো আহিলে। সেইটো হৈছে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট থাকে, সেইটো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত থাকে। আমি কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়? ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট, য়েছ, ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহে। আৰু আমাৰ ইয়াত থাকে SDO ছাৰ বা SDO মেডাম। গতিকে কেতিয়াবা মাজে মাজে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা যেতিয়া সেই ডিচিজন আহে, তেতিয়া আমাৰ ইয়াত যিমান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যিমান ষ্টাফ থাকে, যিমান থাকে, সেই মানুহবিলাক কি হয় পুৰা সজাগ হৈ যায়, এৱেৰ হৈ যায়, যাতে মেডামে বা ছাৰে যাতে কোনো ধৰণৰ ইনডিচিপ্লিন দেখা নাপায়। আৰু সেইজন মানুহৰ কাম হৈছে এটা প্ৰশাসন, এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট চম্ভালিব লাগে। এজন IAS অফিচাৰে কিহত কাম কৰে? এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট চম্ভালিব লাগে। ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গোটেইখিনি বস্তু, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গোটেইখিনি এডুকেশ্যন হওক, মেডিকেল হওক, আৰু বাকী ৰাস্তা পদূলি বনোৱা যিমান আছে, যিমান অফিচাৰ আছে, সেইবিলাকৰ চবতকৈ ওপৰত যোনজন হেড হয় সেইজনে হৈছে IAS অফিচাৰ, যাৰ তলত এজন IPS অফিচাৰো থাকিব লাগিব, যিজনে গোটেই প্ৰশাসনটো চলায়। কোনোবা এজন যদি কনষ্টেবল, পুলিচ কনষ্টেবল বা SI চাব ইন্সপেক্টৰে যদি ভুল কাম কৰে, ভুলকে যদি লবিলাক কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে সেই বস্তুটো সেইজন মানুহক পানিছমেণ্ট কৰোঁতেও বা কিবা কৰোঁতেও সেই IAS অফিচাৰজনৰ এটা ছিগনেচাৰ ল'ব লাগিব। গম পাইছা? বুজি পাইছা নহয়? তো এজন বহুত পাৱাৰ থাকে সেইজন মানুহৰ, IAS অফিচাৰৰ বা IPS অফিচাৰৰ।
আৰু এতিয়া আমি ভুল কৰা হ'ব যদি অকল IASৰ বিষয়ে যদি কয় সেইটো ভুল কৰা হ'ব মেইন ৰুটটো ক'ত আছে UPSC বুলি কয় যোনটো সাৰ্ভিস বুলি কয় UPSC ইউনিয়ন পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন তেনেকৈ আৰু মানে এটা দীঘলীয়া লিষ্ট আছে তাৰপিছত গ্ৰুপ A অফিচাৰ গ্ৰুপ B অফিচাৰ তেনেকৈ থাকে তাৰপিছত এই তিনজন তিনজন মানে IAS IPS আৰু IFS এই তিনজনক ঠিক আছে ৰামনাথ কোবিন্দ যেতিয়া কোনোবা এতিয়া এইটো টাইমত কোনোবা যদি অফিচাৰ হয় তেনেহলে কাৰ ওচৰত শপত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ন যদি IAS IPS IFS অফিচাৰ হয় তেনেহলে সেইজন ৰামনাথ কোবিন্দৰ ওচৰত শপত গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত গৈ এটা ইন্টাৰেষ্টিং এটা মানে কাহিনী এটা কম ভাল লাগে ষ্টৰী শুনি এটা মুভিৰ নাম আছে পূৰ্ণা ইউটিউবত পাবা পূৰ্ণা এটা মানে মুভি হয় ঠিক আছে হেতুত মানে এজনী ছোৱালীৰ মানে কাহিনী দিয়া আছে তোমালোকৰ নিচিনা স্কুলত পঢ়া ছোৱালী সেই ছোৱালীজনী কাহিনীটো ষ্টাৰ্ট হৈছে ঘৰত বিয়া দিব লৈছিলে she was only 12 years অকল 12 বছৰ আছিল হেতু টাইমত বহুত দুখিয়া আৰু ইহঁতৰ হেতু সমাজত যোনটো ঘৰৰ পৰা আহে হেতুৱে কালচাৰ बेटी है शादी कर दो और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा किसी का घर पे जाके बर्तन धोएगा पति को सर्व करेगा মানে ছোৱালী বুলি ক'লে এটা হেৰি থাকে ন হিঞ্জোসা বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানে হলে কাম কৰিবই লাগিব তেনেকুৱা আজি আমি 14 নম্বৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীক আমি জানো আৰু তোমালোকে জানা অকল only one female prime minister Indira Gandhi only one why क्यों ऐसे कोई ना है बेटी है बाद में जाके क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा दूसरों के घर पे जाके बर्तन धुलाई करेगा नहीं हे वस्तु तो नहीं कब पारा के मानु नहीं कब पारा के माने किबा ता माने আমাক লাগে হয়নে নহয় আমাৰ ভিতৰ ডৰ আছে ফিয়াৰ আছে বহুত ফিয়াৰ হৈ থাকো আমি এটা বহুতে ভাবিব পাৰে কিছু মানে এটা মই সাধাৰণ এটা এক্সাম্পল দি মই যেতিয়া সৰু আছিলো তেতিয়া ফিয়াৰ এটা আছিলে সৰস্বতী পূজাত মই নগৈছিলো মোৰ এটা ফিয়াৰ আছিলে মই ভাবিছিলো বেলেগে শাড়ী পিন্ধি যায় বেলেগে বেলেগ ধুনিয়া ধুনিয়া কাপোৰ পিন্ধি যাব हाँ ठीक है हाँ जब मैं छोटी थी ना तब उस वक्त क्या होता था सरस्वती पूजा में मैं ना बचपन से कुछ ऐसा मतलब भावुक टाइप का थी कुछ चीज एक बार देख लो तो उसके बारे में सोचती रहती हूँ अगर कुछ गलत भी बोल दिया ना उसको कंपेयर करती रहती थी मतलब बड़े आदमी कुछ गलत बोल देना तो वो भी मुझे किचकिच करता था मतलब क्यों बोला लेकिन मैं बहुत छोटी थी मैं कुछ बोलूंगी तो वो लोग टाल देती थी कोई सीरियसली नहीं लेता था वैसे ही तुम लोगों के साथ भी होते होंगे घर पे तुम लोग डिसीजन लेते हो क्या नहीं लेते ना कहीं जाना होता तो मम्मी से या फिर पापा से पूछते हो है ना ऐसा होता है कभी कभी गुस्सा आता है ना तो मैं जब छोटी थी उस वक्त सरस्वती पूजा इसलिए नहीं जाती थी कि मैं देखती थी कि बच्चे मतलब दूसरे मेरी फ्रेंड्स अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे अच्छे से मेकअप करके जाएंगे ये सब ब्ला 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 दूसरों के बर्थडे पे मैं इसलिए नहीं जाती थी कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है एक बार मैं गलती से गई एक ऑफिसर की बेटी थी उसकी बर्थडे था आई वॉज ओनली 4 years और 3.5 years अभी भी मुझे याद है 3 साल हाफ ऐसा कुछ थी एक ही ड्रेस थी बाहर जाने के लिए वो पहन के गई वो थोड़ा सा गंदा था तो उन लोगों के जो दरवाजे पे मैं पहुंची उनके जो घर पे काम करने वाली एक बाई थी उसने मुझे भगा दिया बोला इतना गंदा कपड़ा पहन के तुम क्यों आ रहे हो ये तो बर्थडे है ऐसा बोला था तो मैं घर पे भाग के गई और जाके जोर जोर से रोई मुझे भगा दिया क्यों मेरा कपड़ा गंदा है इसलिए मैं सरस्वती पूजा जो भी हो मैं गई मैं स्कूल की ड्रेस पे ही मैं जाती थी और जाके सिर्फ ये जो भगवान को जो पूजा करते ना जैसे तुम लोगों ने किया ना वो करके मैं चली आती थी कभी कहीं पे भी रुकती नहीं थी क्योंकि दूसरों को देखने से गिल्टी फील होता था लेकिन मैं बच्ची थी मुझे बोलने वाला कोई नहीं था कि नहीं भगवान मतलब जो पूजा है ना वो भक्ति से होता है ड्रेस से नहीं होता है और ठीक उसी तरह एजुकेशन है ना
वो भी हमारे अंदर अंदर में भक्ति होना पड़ेगा। और उसी प्रकार मैं ना लोगों के बर्थडे पे जाना छोड़ दिया। जब भी बर्थडे सुनती थी ना, तभी वो कहानी, वो स्टोरी मेरे दिमाग में आते थे। तो ऐसे ही कुछ मतलब स्टोरी लोगों के साथ होता होगा, आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ स्टोरी होगा, है ना? सबके साथ, सबके घर में प्रॉब्लम भी होंगे, कुछ ये सब होंगे। ठीक उसी तरह ये पूर्णा जो है ना, पूर्णा को ओनली 11 या 12 इयर्स में उसको शादी करने के लिए वो कर रहा था, तो वो घर से भाग गई। भाग के एक स्कूल पहुंच गई। उस स्कूल का नाम था तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी, तेलंगाना। तो उस लड़की में इतना करेज था, उसको खुद ही मतलब समझ में नहीं आता था। मतलब हम जब हम छोटे होते हैं ना, हमें खुद ही समझ में नहीं आता है कि हम क्या बनेंगे बाद में जाके। हमें क्या आता है, क्या नहीं आता है, हमें समझ में नहीं आता। हम लोग सिर्फ दूसरों के धारणा पे, दूसरों के कंसेप्ट पे, दूसरे हमको ये बनो बोल दिया तो हम वही बनने के लिए चले जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं तो हम वही करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन लेकिन हमारे पास उससे ज्यादा हमारे पास पावर होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो समझने के लिए हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे आते हैं, जैसे कि तुम लोग स्कूल पे आए हो अभी समझने के लिए। ठीक है, तो अपनी समझ को कभी भी लिमिटेड मत करो, अनलिमिटेड करो। जरूरी नहीं है कि तुम लोग बाद में जाके सिर्फ डॉक्टर बनो या फिर इंजीनियर बनो या फिर टीचर बनो या फिर IAS ऑफिसर बनो, IPS ऑफिसर बनो, ये जरूरी नहीं है। उससे भी ऊपर कुछ अलग भी है, तुम लोगों को कौन सी प्रोफेशन मालूम है, क्या क्या बन सकते हो तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग बाद में जाके क्या बनोगे? कोई हो सकता है कि वो अच्छा गाते होंगे, अच्छा डांस करते होंगे। मासूम को जानते हो तुम लोग? कौन है वो? डांसर है। तो डांस करो तो ऐसे करो ताकि सबको पता चले, सब लोग इंस्पायर हो जाए। इंस्पायरमेंट दूंगा। उसके बाद खेलो तो ऐसे खेलो। हिमा दास को जानते हो ना? हिमा दास वो रनर है। तो रनिंग करो तो ऐसे करो ताकि अपने असम पार हो जाओ, पूरा इंटरनेशनल रनर बनो। उसके लिए क्या चाहिए? डर को मिटाना पड़ेगा। अंदर जो फियर है ना हमारे अंदर, उसको तोड़ना पड़ेगा, जानने की कोशिश करना पड़ेगा। हर किसी से आप लोग जान सकते हो, ठीक है? जानने का तरीका कैसे है? सबका तरीका अलग अलग है। आप लोग आज सर ने बताया कि पेन और पेपर ले लो, आप लोगों ने फॉलो किया, पेन और पेपर ले लिया। ऐसे ही आप लोगों को सिखाते हैं, है ना? जानने का कई सारे तरीका है, जैसे कि ये क्या है? धूप का पैकेट है, इसको आपने जलाया, है ना? कुछ सोचा है धूप पैकेट को देख के? स्मेल करता है ना, मुदमा, गठाओ गठाओ मुदमा। हर चीज का एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव इफेक्ट होता है। आपको पता है ज्यादा से ज्यादा ये जो धूप अगर आप लोग जलाओगे तो उसका जो धुआं है ना वो आपके आंख में लग जाता है, तब क्या होता है? आंसू निकलते हैं ना। और तुम्हें पता है ज्यादा धुआं के कारण सिगरेट से लोगों को पता है कैंसर होता है। अगर आप ज्यादा धुआं लोगे तो वो सिगरेट से भी ज्यादा खतरनाक है। हमारे इंडिया के बहुत सारे ऐसे बामुन जो प्रीस्ट होता है ना मंदिर के, उन लोगों के मरने का कारण कार्डियोवेस्कुलर जो रोग है ना, डिजीज है, उस वजह से वो लोग मरते हैं। अनसाइंटिफिकली आप लोग काम करोगे तो ऐसे जल्दी जल्दी आप लोगों को मरना पड़ेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग क्यों मर गए, है ना? अभी ठीक उसी तरह हम एजुकेशन पे लाते हैं। IAS ऑफिसर होने के लिए आप लोगों को एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? क्वालिफिकेशन, और वो भी क्वालिटी नॉलेज होना पड़ेगा। आप लोग जो भी क्लास में पढ़ाई करते हो ना, उसी बुक को आप लोग ध्यान से पढ़ो। क्या पता कुछ और बन जाओ आप लोग, है ना? तो IAS ऑफिसर तो हम लोग
मैंने बोल दिया वो डिस्ट्रिक्ट को संभालते हैं। ठीक उसी तरीके से आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं ना, वो जितने भी पुलिस ऑफिसर्स है उसका हेड होता है। इस पे 3 स्टार होता है, कंधे पे 3 स्टार। हमारे बोडो कम्युनिटी के कुछ आईपीएस ऑफिसर्स हैं, आप लोग जानते हो उनको नाम? आईपीएस ऑफिसर, who is the first IPS officer of Bodo community? RS मोसाहारी। अभी रिसेंटली कुछ कोई एक पोस्टिंग हुआ है, वो रिसेंटली तापोस बसुमतारी आईपीएस ऑफिसर। और आईएएस कौन था रिसेंटली? आईएएस ऑफिसर। हाँ यस, वेरी गुड। नाम क्या है तुम्हारा? रोनसाई नर्जरी। वेरी गुड, सिट डाउन। सो मुझे जान के अच्छा लगा कि रिसेंट के बारे में आप लोगों को काफी हद तक बहुत सारी चीजें पता है ना? कोई खेलते हो क्या फुटबॉल वगैरह? खेलते हो? नहीं खेलते? खेलते होंगे लेकिन नहीं बता रहे, कोई बात नहीं। तो अभी बता दिया, अभी हम लोगों ने बता दिया ये सब कौन कंडक्ट करता है? यूपीएससी। ठीक है, ये जो पूर्णा मूवी है ना, कभी देख लेना। पूर्णा तेलंगाना की थी और वो यंगेस्ट माउंटेनियर था। माउंट एवरेस्ट को उसने ओनली 13 इयर्स में उसने माउंट एवरेस्ट तक मतलब गया था, ऊपर तक। डांगोर मनोहरे माने बड़े बड़े आदमियों की ही बहुत हालत खराब हो जाता था, लेकिन ओनली 13 इयर्स की ये लड़की विदाउट ट्रेनिंग उसको मतलब जब मूवी देखोगे ना तब पता चल जाएगा, वो इंस्पायर हो जाओगे। और उसमें उनको चिन्हित किसने किया? आईपीएस ऑफिसर ने। उस आईपीएस ऑफिसर का नाम था डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार। उस स्कूल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन वो ऑफिसर वहां पे गए क्योंकि वो ऑफिसर थे, इसलिए सब लोग उसको रेस्पेक्ट करते थे। ठीक है, वैसे तो आईपीएस ऑफिसर का ये काम नहीं है, लेकिन वो अच्छे इंसान थे, अच्छा काम किया था उसने। तो वहां पे जाके उसने देखा कि बच्चों की मतलब किस तरीके से बच्चों की सिर्फ पढ़ाई में नहीं, उसका जो अदर एक्टिविटीज है उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, उन सब में उसने ध्यान दिया। उसमें देखा, उस लड़की को देखा और उसने ही बताया कि ये लड़की कर सकती है।